नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। देश में आज से शुरू हुआ कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान। पूरे उत्तर बंगाल में प्रक्रिया हुई शुरू। देश के स्वस्थ जगत में एक नया अध्याय आज से शुरू हो गया है। सिलीगुड़ी शहर भी इस ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बना है। स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो অলরেডি এই গত 3-4 দিন ধরে বলছি এবং মানে আমার আজকে একটাই মাত্র বক্তব্য যে আজকে আমরা সাকসেসফুলি, আপনারা দেখলেন প্রথম যিনি ভ্যাকসিন নিলেন উনি বললেন, তা আমরা সাকসেসফুলি এটা করতে পারছি এবং চারিদিকে খুব এখন মানে এত মোটিভেশন, এত সবাই নিতে আসতে চাইছেন, তা প্রচুর ডিমান্ড আসছে। তা ন্যাচারালি ইট ইজ এ গ্র্যান্ড সাকসেস। এবার কোথাও কোনো সমস্যা নেই যারা নিলেন টিকা? না, এই তো আপনারা কথা বললেন, খুবই ভালো হয়েছে, বুঝতে পারিনি কিছু, ইনজেকশনটা তো বোঝা যায়নি, খুব ভালো হয়েছে, পুরো প্রোগ্রামটাই খুব সুন্দর হয়েছে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, আমাদের আম জনতা, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, মানে যা এই সমস্ত কার্যক্রমের জন্য যারা এখানে জড়িত তাদের বিশাল হেল্প, আপনাদের প্রচার সব মিলিয়ে আমরা খুব আনন্দিত আজকে যে আমরা নিতে পেরেছি। অসাধারণ কাজ এবং আমরা সবাই মিলে আশা করছি আমরা প্রত্যেকে এটা পেয়ে যাব। প্রথমে ভ্যাকসিনের জন্য যেরকম প্রোটোকল করা হয়েছে, কারা আগে পাবে কারা একটু পরে পাবে সেই হিসেবেই হবে। আমার কোনো আতঙ্কই ছিল না, আমরা তো এটা আজকে যেমন ঘোষিত ছিল বেলা 10:30টার সময় উদ্বোধন হবে, সেভাবেই প্রধানমন্ত্রী ওখানে উদ্বোধন করেছেন। মনে আমাদের কাছে সেরকম নিউজ এসছে। আসার পরেতে আমাদের এখানকার বরিষ্ঠ চিকিৎসা ডক্টর রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রথম ভ্যাকসিনেশনটা এখানে করেছেন, আর তার সঙ্গে আমাদের আরেকজন এক্স প্রিন্সিপাল ডক্টর সঙ্গীতা ভট্টাচার্য খুবই ভ্যাকসিনেটেড। অ্যান্ড আমি সবাইকে জানাতে চাই যে দিস ইজ আ ভেরি সেফ ভ্যাকসিন। আমি নিয়েছি, এখন বেরোলাম, তো কোনো অসুবিধা কিছু নেই। दार्जिलिंग जिले में यह प्रक्रिया पहले 6 माही में 5 अंकों से शुरू किया गया है। दार्जिलिंग जिले के लिए 18,000 टीके आ चुके हैं। आज मैदानी इलाकों में सिलीगुड़ी जिला अस्पताल और उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज से वैक्सीन दी जा रही है और पहाड़ के करसंग और दार्जिलिंग जिले में भी कोरोना वायरस टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। पहले हाफ में दार्जिलिंग जिले में लगभग 15,997 लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। इस बीच मालदा, इस्लामपुर और तमाम उत्तर बंगाल में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। आपको सीधे ले चलते हैं तमाम क्षेत्रों में जहां टीकाकरण अभियान चल रहा है। আর মাঝখানে একটা ভিডিও কনফারেন্স আছে। ভিডিও কনফারেন্স এখান থেকে আমরা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কিছু এসডি অফিসার স্টাফ এনারা আসবেন, নবান্নর সঙ্গে এটা ভিডিও কনফারেন্স হবে 1টা নাগাদ। না চাল কোনটা ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়ে গেছে, ভ্যাকসিন শুরু হয়ে গেছে। আসলে সবাই ভয় করছে যে ভ্যাকসিন নিয়ে নিলে কিছু অসুবিধা হবে, কিন্তু সেটা ভয় আমার নেই। আমি গেলে যে আমাকে তো কার পার্টি নিয়ে নেবে, আর যদি কিছু কার্যকর ঠিক হয় ভ্যাকসিন, তো খুব ভালো হয়। এখনো পর্যন্ত 5 জনের দেওয়া হয়ে গেছে। ডিএম সাহেব ছিলেন, আমরাও ছিলাম। ভ্যাকসিন শুরু হয়ে গেছে এবং এখনও পর্যন্ত কোনো আনটোয়ার্ড ইনসিডেন্ট বা সাইড এফেক্ট কিছু পরিলক্ষিত হয়নি। আমাদের এটা চলবে বিকেল 5টা পর্যন্ত। যারা এখানে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন তাদেরকে পরপর মেডিসিন দেব এবং আমাদের মালদা জেলায় 8টা সেন্টার করা হয়েছে। প্রতিটা সেশনে আজকের জন্য 100 জন করে দেওয়া হবে। টোটাল 100 জন আমাদের টার্গেট আছে এবং এখন অবধি আমরা সফলভাবে 2 জনকে নিতে পেরেছি। শুরু করলাম, আমরা শুরু করেছি। 100টা হবে আজকে। স্বাস্থ্যকর্মী আমরা একজন প্রথমে নিলেন, একজন সিস্টার নার্সিং স্টাফ নিয়েছেন, তারপরে कोलकाता से लौटने के बाद अचानक कांग्रेस नेता शंकर मालाकार से मिले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरुंग। राजनीतिक अटकलों में बाजार गर्म। शुक्रवार शाम को अचानक से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो बिमल गुरुंग कोलकाता से लौटने के बाद दार्जिलिंग जिले के कांग्रेस के सभापति शंकर मालाकार से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इससे राजनीतिक हलकों में कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि दोनों पक्षों में इस मुलाकात के संबंध में कोई भी बात नहीं कही है, लेकिन शंकर मालाकार ने बताया कि बिमल गुरुंग से उनकी जान पहचान काफी पुरानी है। कांग्रेस के शासनकाल में ही पहाड़वासियों को डीजीएचसी और जीटीए मिला था। उन्होंने कहा कि बिमल गुरुंग से इस मुलाकात में वोट को लेकर कोई चर्चा
नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं निश्चित तौर पर चुनाव में खड़ा हो रहा हूं और सभी दलों का समर्थन चाहता हूं। এখানে রাজনীতির কোনো বিষয় নয়। বিমল গুরুংয়ের সাথে আমার বহুদিনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক। 2011 সালে যখন বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলাম তখন বিমল গুরুংরা আমাদেরকে সমর্থন করেছিল এবং আমরা জিতেছিলাম। পরবর্তীতে রাজনীতির প্রেক্ষাপট, কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার পাহাড়ের স্থায়ী সমস্যা সমাধানের জন্য ওরা যখন আন্দোলন করেছিল তখনও দিল্লিতে আমি বিমল গুরুং, রোশনগিরি এবং ওদের দলের আরও অনেককে দিল্লিতে চিদম্বরমের কাছে, সুশীল সিন্ধের কাছে এবং কেন্দ্রীয় আরও অন্যান্য মন্ত্রী রাহুলজি তাদের কাছে আমি পরিচয় করে দিয়েছিলাম, নিয়ে গেছিলাম যাতে পাহাড়ের স্থায়ী সমস্যার সমাধান হয়। তাতে করে বিমল গুরুং এবং রোশনের সাথে আমার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গতকাল ও আমাকে ফোন করলো যে তুমি কেমন আছো, তোমার সাথে অনেক দিন দেখা হয় না, তুমি কি শিলিগুড়ি? আমি বললাম হ্যাঁ শিলিগুড়ি, তাহলে চা খেতে তোমার বাড়িতে আমি কালকে সন্ধ্যাবেলা আসবো, তুমি থেকো। তো বিমল এবং রোশন এসেছিল, গল্পগুজব হলো, কৌশল বিনিময় হলো, চা খেলো। যেহেতু রাজনীতি আমরা করি, কিছু রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা হলো, এর বেশি কিছু নয়। মানে জোট? না 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 না, জোটের বিষয়ে ওর সাথে কেন আলোচনা হবে? ও আমার ব্যক্তিগত বন্ধু, অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ হয় না। ও নিজেই আমাকে ফোন করেছিল তোমার সাথে দেখা করব, অনেক দিন দেখা হয় না। এবং এটা সবাই জানে যে বিমল গুরুং, রোশনগিরিদের পাহাড়ের স্থায়ী সমস্যা সমাধানের জন্য এই জিটিএ তৈরি করার ব্যাপারে তখন আমারও একটা ভূমিকা ছিল, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে বারবার বৈঠক করানো, এবং তখন থেকে একটা সম্পর্ক আমার সাথে গড়ে ওঠে। দেখুন, রাজনৈতিক বিষয়ে সত্যি করে বলছি তেমন কোনো আলোচনা হয়নি। কেমন আছো, কৌশল বিনিময়, এর বাইরে আর কিছুই হয়নি। না, রাজনীতির সমীকরণের কোনো বিষয় নেই। কারণ আপনাকে বুঝতে হবে আমরা একটা জাতীয় দল, যে দল 136 বছর ধরে ভারতবর্ষে মাটিতে রাজনীতি করছে। আমাদের দলের জোট বলুন, সিট অ্যাডজাস্টমেন্ট বলুন বা অন্য পার্টির সাথে সমঝোতা বলুন, সবই নির্ভর করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং রাজ্য নেতৃত্বের উপর। वायरस के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू, पीएम मोदी बोले इस दिन का पूरे देश को बेसब्री से था इंतजार। भारत में आज से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण ड्राइव की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन के जरिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में आज से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष प्रशंसा के हकदार है जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि पहला टीका लगाने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी इसकी जानकारी भी दे दी जाएगी। सभी देशवासियों को ये बात बताना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगवानी बेहद जरूरी है। एक डोज के बाद दूसरी डोज लगवाना ना भूले। पहली डोज और दूसरी डोज के बीच 1 महीने के अंतराल रखें। दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना वायरस के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत में कोरोना वायरस महामारी का जिस प्रकार से मुकाबला किया है उसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। केंद्र और राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, हर सरकारी संस्थान, सामाजिक संस्थाएं कैसे एकजुट होकर शानदार काम कर सकते हैं, ये उदाहरण भारत ने दुनिया के समक्ष पेश किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कोरोना वैक्सीन आने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी अपनानी है। अब देश को नया प्रण लेना होगा, दवाई भी, कड़ाई भी। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ समापन। कोरोना संकट काल में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित स्वस्थ नियमों को मानते हुए सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस 2 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को हुआ। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव उपस्थित थे। इसके अलावा पुलिस के कई आला अधिकारियों की भी उपस्थिति रही थी। इस प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को मंत्री और पुलिस अधिकारियों के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। जलपाईगुड़ी में भी राम मंदिर निर्माण के लिए अर्थ संग्रह अभियान शुरू।
पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में भी विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की ओर से अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए अर्थ संग्रह अभियान शुरू किया गया। आज भगवान राम की पूजा अर्चना के बाद संगठन के सदस्य घर घर जाकर मंदिर निर्माण के लिए अर्थ संग्रह किए। संगठन के सदस्यों ने बताया कि 15 जनवरी से 31 जनवरी तक भगवान राम के मंदिर के लिए अर्थ संग्रह अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले आज जलपाईगुड़ी के डांगापाड़ा स्थित कालीबाड़ी में भगवान राम की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद संगठन के सदस्य मंदिर निर्माण के लिए अर्थ संग्रह अभियान शुरू कर दिए। संगठन के जिला सचिव कृष्णेंदु गुहा ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज से अर्थ संग्रह अभियान शुरू किया गया है, जो 31 जनवरी तक चलेगा। आज संगठन के सदस्य घर घर जाकर लोगों से इस कार्य के लिए अर्थ संग्रह करेंगे। इसके साथ ही सड़कों पर राहगीरों से व दुकानदारों से भी मंदिर निर्माण के लिए अर्थ जुटाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी राम भक्त मंदिर निर्माण के लिए 10 रुपया से लेकर अपने सामर्थ्य के अनुसार अधिकतम अनुदान दे सकते हैं। भव्य श्री राम मंदिर अयोध्याय भव्य श्री राम मंदिर निर्माणের জন্য লক্ষ লক্ষ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তা এবং আমাদের যারা করসেবক বৃন্দ তারা ভারতবর্ষের প্রতিটি বাড়িতে তথা আমাদের জলপাইগুড়িতে প্রতিটি বাড়িতে যাবে এবং গিয়ে আমাদের অর্থ সংগ্রহ করে আমাদের ভব্য শ্রী রাম মন্দির নির্মাণের জন্য এর জন্য আজকে প্রথম শুরু হলো শুভ মকর সংক্রান্তির পরবর্তী দিন থেকে আমাদের জলপাইগুড়িতে আজকে এখান থেকে শুরু হলো এবং আমাদের সমস্ত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তারা সমস্ত বাড়ি গিয়ে এই দিব্য রাম মন্দিরে কাজ করবেন এবং আমি আপনাদের মাধ্যমে আরও প্রার্থনা করি আপমর জলপাইগুড়িবাসী আপনারাও আসুন এই পুণ্য অর্জন লাভ করুন। জয় শ্রীরাম। আজকে কোথায় করছেন? আজকে আমাদের এখানে এটা হচ্ছে 12 হাত কালী মন্দিরের প্রাঙ্গণে এখান থেকে আজকে স্টার্ট হলো। চ্যালেঞ্জ ক্লাবের সামনে। হ্যাঁ, চ্যালেঞ্জ ক্লাব ডাঙ্গাপাড়া। চ্যালেঞ্জ ক্লাব ডাঙ্গাপাড়া। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 20 लाख के पार पहुंची। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। रोज लाखों लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो रहे हैं। वहीं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने आंकड़े जारी कर बताया कि कोरोना वायरस के कारण अब तक दुनिया में मरने वालों का आंकड़ा 20 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में अब तक लगभग 9 करोड़ 35 लाख 18,182 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के न्यूनतम आंकड़े के अनुसार 20 लाख 2,468 लोग अब तक इस वायरस के शिकार हो चुके हैं। अमेरिका ने कोरोना वायरस मामलों और मौतों की अब तक अधिकतम संख्या की सूचना दी है। अमेरिका में 2 करोड़ 33 लाख 95,418 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 3,90,195 लाख लोगों की मौतें हो चुकी है। लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी उदय की ओर से सैनिटरी पैड वितरण शिविर का आयोजन। इस शिविर में पद्मश्री से सम्मानित करीमुल हक ने महिलाओं को 25,000 से ज्यादा सैनिटरी पैड्स वितरण किए। लायंस क्लब ऑफ उदय की ओर से 50 लाख से ज्यादा सैनिटरी पैड्स वितरण करने का लक्ष्य रखा हुआ है। इस कार्यक्रम में 350 से ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया और साथ ही महिलाओं की स्वस्थ सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता कैंप भी आयोजन किया गया था। पूरे कार्यक्रम में लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी उदय के अंकित अग्रवाल, विशाल अग्रवाल सहित अन्य सदस्यों की सक्रिय योगदान रही थी। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। मलाई कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाति हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। समय के साथ ही जरूरी बदलाव। प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 983237
7861 टीना का घर बनाने का टोटल समाधान। बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। Contact number 9709 970981. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए मादरिहाट में किया गया शिविर का आयोजन। वन और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए सिक्किम सरकार के वन विभाग और वन सुरक्षा कमेटी तथा जल्दापाड़ा वन विभाग वन सुरक्षा कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में मादरिहाट के NIC में एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का लक्ष्य प्राणियों की रक्षा के लिए विचारों का आदान प्रदान करना था। वन्य प्राणियों को बेहतर तरीके से देखभाल किया जा सके, इस पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। इस अवसर पर सिक्किम वन विभाग के अधिकारी और जल्दापाड़ा वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही थी और उन्होंने वन्य प्राणियों की रक्षा और सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से चर्चा किया। फरेस्ट डिपार्टमेंट एवं EDC कमिटिर किछु मेम्बारরা আসে ওর একটা কিছু কনজারভেশন কিছু আমাদের কাছে আদান প্রদান কথাবার্তা আমরা কিভাবে EDC কে ম্যানেজ করি, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে কিভাবে রক্ষা করি, এইগুলোর ব্যাপারে একটা আলোচনা এখানে মানে একটা কর্মশালা ছিল আর কি। সোরেং উত্তরে এইসব ফরেস্ট ভিলেজার প্লাস হচ্ছে ফরেস্ট অফিসাররা আসলে যেভাবে আমরা এখানে সার্ভাইভ করি, মানে যেরকম আমরা JFMC বা EDC এলাকাতে যে ফরেস্ট থেকে আমাদের কিভাবে সাহায্য করে এবং ফরেস্টকে আমরা কিভাবে সাহায্য করি, কি প্রোগ্রামগুলো আমাদের বিভিন্ন সময় থাকে। भारतीय जनता पार्टी एक संशोधन नगर है जहां पर सभी राजनीतिक दलों और सभी वर्ग के कर्मियों का स्वागत है। रायगंज में भाजपा के गृह संपर्क अभियान के दौरान श्री रूपा मैत्रा ने सभी दलों के लोगों का भाजपा में किया स्वागत। रायगंज में भारतीय जनता पार्टी के गृह संपर्क अभियान के दौरान श्री रूपा मैत्रा ने सभी दलों के लोगों का भाजपा में किया स्वागत। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीत के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। इसी के तहत गृह संपर्क अभियान कर्मसूची के साथ साथ 49,000 गाँव से एक मुट्ठी चावल संग्रहित अभियान शुरू किया गया है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से पूरे राज्य में अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान में शामिल होने के लिए भाजपा उत्तर बंगाल की बहुचर्चित नेत्री तथा किसान मोर्चा उत्तर बंग की पर्यवेक्षक श्री रूपा मैत्रा रायगंज आई हुई है। उन्होंने आज एक पत्रकार सम्मेलन कहा कि भाजपा एक संशोधन नगर है जहां पर शामिल होने वाले लोगों का रूपांतरण को विकास कार्यों में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी दलों के लोगों का भाजपा में स्वागत है। उन्होंने कहा कि लोग प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर और TMC में व्यापक भ्रष्टाचार को देखते हुए भाजपा का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा क्योंकि सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और भाजपा के साथ आ रहे हैं। ব্যাপক প্রচার এবং সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, এই যে ৭৬ লক্ষ চাষির পরিবার মানে প্রায় 5 কোটি মানুষ, তারা কিন্তু দুহাত তুলে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং মোদিজিকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন। এই যে তারা মোদিজিকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন তার থেকে বোঝা যায় যে আজকে পশ্চিমবাংলায় প্রতিটি মানুষ তারা কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করার জন্য তারা একেবারে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আমাদের কাছে বিরাট লম্বা লিস্ট রয়েছেন যারা আমাদের দলে আসতে চাইছেন এবং আপনারা জানেন যে কেউই চায় না, আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতি দিলীপদা বলেছিলেন যে ডুবন্ত জাহাজে কেউই থাকতে চায় না। যারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রয়েছেন, রাজনৈতিক মঞ্চে রয়েছেন, তারা এখন মানুষের জন্য যে সেবার কাজ করতে পারছেন না। এখানে আপনারা দেখছেন বিভিন্ন জায়গায় শাসক দলের যারা সদস্য রয়েছেন
তারা বিভিন্ন সময়ে তাদের যে মানসিক যন্ত্রণা, সেই যন্ত্রণা তারা জনসমক্ষে বলছেন, সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে জানাচ্ছেন। এবং আমরা মনে করি যারা মানুষের সেবার্থে কাজ করতে চান, দেশের কাজ করতে চান, তারা নিশ্চয়ই ওই কাটমানির দলে থাকতে চান না। তাই তারা আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে একটা অল্টারনেট ফোরাম হিসাবে তারা দেখছেন এবং আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা চাই পশ্চিমবাংলার প্রতিটা মানুষ, প্রতিটা ঘরে घरे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से उत्तर बंगाल जिले के रायगंज स्टेडियम में शुरू हुआ बंगाल आमादेर गौरव। पश्चिम बंगाल सरकार की महत्वाकांक्षी बंगाल आमादेर गौरव मेला रायगंज स्टेडियम में शुरू हुआ। दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद सभाधिपति कविता बर्मन ने किया। इस अवसर पर उत्तर दिनाजपुर जिला शासक अरविंद कुमार मीणा, अतिरिक्त जिला शासक अलंकृता पांडे, रायगंज नगर पालिका के चेयरमैन संदीप विश्वास, सूचना और संस्कृति विभाग के अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही थी। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना व संस्कृति विभाग की ओर से उक्त मेले का आयोजन किया गया है। यह मेला 3 दिवसीय होगा। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों, अब तक की उपलब्धियों, आम जनों के लिए विभिन्न सरकारी समाज कल्याण योजनाओं आदि की जानकारी लोगों को मुहैया कराने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया है। इसमें लोग कृषक बंधु, रूपश्री, कन्याश्री, इक्याश्री, शिक्षाश्री, खाद्य साथी, तपशीली बंधु, जय जोहार, स्वस्थ साथी आदि पश्चिम बंगाल सरकार की समाज कल्याण योजनाओं से संबंधित पूरी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। पहले दिन ही इस मेले में लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। अलग अलग स्टॉलों पर जाकर लोगों ने तरह तरह की जानकारियां ली। बेंगल जो उन्नयनमूलक যতগুলো কাজ করেছে ওর জন্য এক্সিবিশন লাগানো হয়েছে এখানে, যেখানে যত আমাদের গভর্নমেন্ট স্কিম আছে সবার ক্ষেত্রে বলা আছে ওদের এলিজিবিলিটি কি, লোক কিভাবে সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। তো আমি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত রায়গঞ্জবাসীদেরকে রিকোয়েস্ট করতে চাইবো আপনারা একবার অবশ্যই ভিজিট করবেন। এখানে এসে আপনাকে ভালো লাগবে। আমাদের পুরো বাংলা সংস্কৃতির এক ভালো এক मतलब অনুষ্ঠান, ভালো এক প্রোগ্রাম এখানে হচ্ছে। लोक संस्कृति व आदिवासी संस्कृति उत्सव शुरू। अलीपुरद्वार जिला तथ्य व संस्कृति विभाग की ओर से शुक्रवार से अलीपुरद्वार इंडोर स्टेडियम में लोक संस्कृति व आदिवासी संस्कृति उत्सव शुरू हुआ। यह उत्सव 17 जनवरी तक चलेगा। उद्घाटन समारोह में अलीपुरद्वार के विधायक सौरभ चक्रवर्ती, अलीपुरद्वार जिला सूचना व संस्कृति अधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी व गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में विभिन्न जनजाति समुदाय के सांस्कृतिक नृत्य व संगीत पेश किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक सौरभ चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य की तृणमूल सरकार लोगों के कल्याण के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा राज्य सरकार व अलीपुरद्वार जिला प्रशासन के प्रयास ने इस जिले में कोरोना के मामले पूरी तरह नियंत्रण में है। नए सिरे से कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति में भी राज्य सरकार अलीपुरद्वार जिले के शारीरिक विकास को आगे बढ़ा रही है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग में युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से रतुआ के भादो अंचल में एक विरोध रैली निकाली गई। विरोध रैली भादो स्टैंड से शुरू होकर पूरे इलाके की परिक्रमा की। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। उल्लेखनीय कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर चुकी है। गौरतलब है कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 3 महीने से भी ज्यादा समय से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग में आंदोलन कर रहे हैं। যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভাদো অঞ্চলে কৃষকের বিরুদ্ধে, কৃষক আইনের বিরুদ্ধে আমাদের এখানে ভারতে একটা মিছিল হলো। আমরা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ছেলেরা এই উদ্যোগ নিয়েছে যে যেন এই যে ঠান্ডার মধ্যে অনেক লোক দিল্লিতে পড়ে আছে, ঠান্ডার মধ্যে কত লোক মরে যাচ্ছে, বৃষ্টি পড়ছে, তার এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না, ডিসিশন নিচ্ছেন না। আর পশ্চিমবাংলায় এসে অমিত শাহ মতো লোক এসে বড় বড় কথা বলে যাচ্ছেন, কিন্তু ওখানে যে কৃষকগুলো মরছে তার জন্য কোনো রকম পদক্ষেপ নিচ্ছেন না এবং কোনো রকম হচ্ছে না। যতক্ষণ কৃষি আইন আপোষ নেবে না মোদি, ততক্ষণ আমরা যুব ছেলেরা পশ্চিমবাংলায় আন্দোলন চালাতেই থাকবে। আমরা সবাই একসঙ্গে থেকে এই কৃষক আইনের বিপক্ষে আমরা আন্দোলন চালাতে যাব, লড়তেই থাকবো। দরকার লাগলে আমরা রাস্তা অবরোধ করেও বিক্ষোভ করে আমরা आंदोलन चालिए যাব। मोटरसाइकिल के धक्के से महिला की मौत। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में मोटरसाइकिल के धक्के से एक महिला की मौत हो गई। रायगंज थाना इलाके में इस घटना के बाद इलाके में काफी तनाव देखा गया। मृतक की शिनाख्त मीरा बर्मन के रूप में की गई है। वह रायगंज थाने के तुलसीपाड़ा के रूपाहार इलाके की रहने वाली थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार महिला बाजार करने के बाद घर लौट रही थी।
तभी अचानक तेज रफ्तार एक मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार धक्का मार दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में उसे अस्पताल भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में शोक व्याप्त है। তার নাম মীরা বর্মন। আমার জ্যাঠাতো দিদি হয়। কি হয়েছিল ঘটনাটা? ঘটনা যে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে উনি চালের গুঁড়া করে রূপার থেকে বাড়ি ফেরার পথে রূপার ব্রিজের ঠিক উত্তর পাশটায় একটা মোটরসাইকেল ধাক্কা মারে এবং সেখানে দিদি লুটিয়ে পড়ে পাড়ার লোকজন সেখান থেকে हॉस्पिटल में आसार पथे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।